ভারতের কাছে হারানো প্রায় 200 একর জমির মালিকানা ফিরে পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। भारत ने बांग्लादेश को 200 एकड़ जमीन वापस करने का ऐलान कर दिया। ये बांग्लादेश की बड़ी जीत है। भारत की फौज डरी हुई है बांग्लादेश की फौज से, और इस डर के अंदर बांग्लादेश की जिस जमीन पर कब्जा किया था भारत ने, अब उसको वापस करने का ऐलान कर दिया है। तो आज इसी हवाले से वीडियो है कि वो कौन सा हिस्सा है या कितनी जमीन है जो बांग्लादेश को वापस की जा रही है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। ভারতের কাছে হারানো প্রায় 200 একর জমির মালিকানা ফিরে পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। রোববার 15 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়। বিজিবির 47 ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মাহবুব মোর্শেদ রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বিএসএফ এর আহ্বানে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মহিষকুণ্ডির জামালপুর বিওপি সীমান্ত পিলার 152/7S থেকে আনুমানিক 150 গজ ভারতের অভ্যন্তরে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিবাদমান জমিগুলো নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। এছাড়াও সীমান্তে হত্যা বন্ধ, মাদক পাচার রোধে দুই দেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সমাধানের পথ বের করা হয় এবং দুই দেশই সীমান্ত নিরাপদ রাখতে কঠোর ভূমিকা পালন করবে। বিজিবি ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে 40 পাড়া বর্ডার আউটপোস্টের বিওপি পিলার নং 157 এমপি থেকে 85/10S এলাকা পর্যন্ত প্রায় 3 কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সীমানা এলোমেলো হয়ে যায়। কেউ না বুঝলেও আমরা আপনার প্রয়োজন বুঝি, আর তাই তো অত্যাধুনিক ফিচার সম্বলিত বিভিন্ন সাইজ আর কালারের 250-টিরও বেশি ডিজাইন অপশন নিয়ে ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ বোঝে আপনার প্রয়োজন। বিজিবির 47 ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মাহবুব মোর্শেদ রহমান বলেন, প্রায় 3 কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমানার যে গড়মিল রয়েছে তা নিয়ে চলতি বছর 10ই ফেব্রুয়ারি উভয় দেশের সার্ভেয়ার ও বিজিবি বিএসএফ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের আনুমানিক প্রায় 200 একর জমি এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের আনুমানিক প্রায় 40 একর জমির গড়মিল রয়েছে, যা আগামী অক্টোবরে একটি সুবিধাজনক সময়ে উভয় দেশের সার্ভেয়ার, বিজিবি ও বিএসএফ এর উপস্থিতিতে পুনরায় জরিপ করে প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করতে উভয় ব্যাটালিয়নের কমান্ডাররা একমত হন। উল্লেখ্য যে সীমান্তের বিবাদমান এই অংশটি নদী এলাকা হওয়ায় পদ্মার ভাঙন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দুই দেশের সঠিক সীমানা নির্ধারণের জটিলতা ছিল বহুদিনের। দুই দেশের প্রচেষ্টায় তার সমাধানের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। দ্রুত সময়ে সঠিক সীমানা নির্ধারণ করা হবে, তবে জমি বুঝে না পাওয়া পর্যন্ত কেউই তা ব্যবহার করতে পারবে না। কুষ্টিয়া মিরপুর সংবাদদাতা হুমায়ুন কবির হিমুর পাঠানো তথ্যচিত্রে তানভীর আহমদ। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि कैसे भारत ने कब्जा किया हुआ था बांग्लादेश की ज़मीन पर, और जब के बांग्लादेश के अंदर अबूरी हुकूमत आ चुकी है तो अब बांग्लादेश की फ़ौज ने बॉर्डर के ऊपर भारतीय बीएसएफ को जवाब देना शुरू कर दिया, जिसके बाद अब देखें तो भारतीय फ़ौज ने जो कब्जा किया हुआ है बांग्लादेश की ज़मीन पर वो वापस करना शुरू कर दी है। अगर ये भारत वापस नहीं करता तो ये भारत के लिए मुसीबतें बढ़ेंगी, क्योंकि बांग्लादेश अपना हक लेने के लिए अब निकल चुकी है। ना तो बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद की हुकूमत है, ना बांग्लादेश के अंदर भारत नवाज हुकूमत है। अब भारत के लिए मसले बन रहे हैं। जिस बांग्लादेशी ज़मीन पर कब्जा किया है भारत ने, अब वो वापस करना पड़ रही है बांग्लादेश को। ये सिर्फ 200 एकड़ नहीं है, इससे और भी ज़्यादा ज़मीन जो है वो भारत के कब्ज़े में है। अभी बहुत एरिया बाकी है जिस पर भारत ने कब्ज़ा किया हुआ है, और अभी तो बहुत ज़मीन बाकी है जिससे भारत का कब्ज़ा छुड़वाना है और बांग्लादेश के साथ शामिल करना है। तो जी वसीम भाई, कैसी लगी वीडियो? और ये जो भारत बदमाशी करता था, कब्जे करता था, कत्ल करता था, ये क्रिमिनल बनती जा रही है भारत की फौज, और आज देखें बांग्लादेश की ज़मीन इनको वापस करना पड़ रही है। 200 एकड़ ज़मीन छोड़ दी है, और कितनी ज़्यादा ज़मीन है जो इनके कब्जे में है।
मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि ये वाली जो ये सारा क्रेडिट जाता है बांग्लादेश की फ़ौज को, बांग्लादेश की आर्मी को और बांग्लादेश की हुकूमत को। बांग्लादेश की आर्मी ने जब नई हुकूमत आते साथ ही भारतीय आर्मी को जवाब देना शुरू किया बॉर्डर के ऊपर, उनको जवाबी कार्रवाई करके उनके बंदे भी पकड़े। तब उनको पता चला कि ये हम जिनको कुछ समझते नहीं थे, ये तो हमें हमसे दो दो हाथ करने के लिए तैयार बैठे हैं। वो समझते थे कि ये हमारे ज़ेरे साया सारे, हमें कुछ भी नहीं कह सके, हम अपनी मनमानी करेंगे, जो मर्जी करेंगे, जब मर्जी इनको पीछे धकेल देंगे, उनकी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लेंगे। लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि बांग्लादेश की आर्मी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनको अब पता चल गया है कि जो नाजायज़ कब्जे किए थे वो हमें वापस करना पड़ेंगे, वरना ये हमसे हमारी ज़मीन भी छीन लेंगे। तो यही बात है कि वो डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा और ये बड़ी खुशी की बात है बांग्लादेश वालों के लिए। और हमें पाकिस्तानियों को भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे भाई आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव पर खड़े हो रहे हैं और भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। भारत को ये लगता था कि बांग्लादेश अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पाएगा। बांग्लादेश के अंदर जैसी सिचुएशन बनी है, जैसे हालात पैदा हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, जिस तरह से इंतशार फैलाया जा रहा था, और भारत ने भी इसमें पूरा किरदार अदा किया है। हिंदुओं के मंदिर के ऊपर हमले किए कि इल्ज़ाम बांग्लादेश पे लगाया जाए और बांग्लादेश के ऊपर पाबंदियाँ लगवाई जाएं, लेकिन अमेरिका ने भारत की एक भी नहीं सुनी। नरेंद्र मोदी ने बड़ी शिकायतें की हैं जो बाइडन से कि वो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की बात करें और बांग्लादेश के ऊपर पाबंदी लगाएं, बांग्लादेश के ऊपर सख्ती करें, लेकिन जो बाइडन ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा बांग्लादेश को लेकर। और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे थे, इसके अंदर भी भारत ही मुलव्वस था। लेकिन अब देखें तो ये बांग्लादेश की फ़ौज की, बांग्लादेश की सियासी तौर पे बड़ी कामयाबी है, बांग्लादेश की अवामी हुकूमत की बड़ी कामयाबी है कि बांग्लादेश के जो ज़मीन थी जिसके ऊपर कब्ज़ा हुआ था, जिसके ऊपर भारत ने कब्ज़ा किया था, जिसके ऊपर भारत ने बदमाशी की हुई थी, उसको बाजियाब करवाया और बांग्लादेश के अंदर उसको शामिल किया। और आने वाले टाइम पे और भी काफ़ी ज़मीनें हैं जिसके कब्ज़े बांग्लादेश की आर्मी छड़वाएगी। जुनेद भाई, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, आप अभी अमेरिका का नाम ले रहे थे, तो जो बाइडन ने अभी एक बिल पास किया है कि बांग्लादेश को मिलियंस ऑफ डॉलर जो फंड देंगे, और भारत ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि इनके साथ इनके ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। अमेरिका की तरफ से एक सफ़ीर आया बांग्लादेश के अंदर, अभी उसका इतना ज़्यादा अभी चर्चा नहीं हुआ, तो वो आके ये कोशिश कर रहा है कि जो बांग्लादेश है वो अपने पाँव पर खड़ा हो और बांग्लादेश एटमी हथियार बनाने की तरफ गामजन हो, ताकि जो भारत की तरफ से इनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जो और ममालिक हैं वो उनकी तरफ से सामना करना पड़ता है, ये एक एटमी मुल्क बन जाए और पूरी दुनिया के सामने एटमी मुल्क बनकर निकले। अमेरिका अब भारत को छोड़कर बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। जी बिल्कुल वसीम भाई, और पाकिस्तान के साथ भी बांग्लादेश के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हुए हैं और पाकिस्तान की भी कोशिश है कि बांग्लादेश को एटमी ताकत दी जाए, एटमी ताकत बनाया जाए और अपने हथियार भी बांग्लादेश के साथ लगा दिए जाएं। और जब भी बांग्लादेश को इन हथियारों की ज़रूरत हो, ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि बांग्लादेश के भी हथियार हों और बांग्लादेश के पास भी इसका कंट्रोल हो, तो ये भी कोशिशें जारी हैं। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो दोस्ती है, जो प्यार मोहब्बत है, वो एक दफ़ा फिर इकट्ठा होने जा रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।